ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو اقرا بلال اور طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ آنے والے معزز محترم مہمانوں کو خوش آمدید۔ عزیزان من، شجر کاری اس لیے پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک درخت جو ہے وہ کم و بیش 12 بچوں کے لیے آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ مجھے 37-38 برس ہو گئے ہیں یہ پروگرام کرتے ہوئے، اور میں ہر سال اس بات کی لوگوں کو گواہی دلواتا ہوں کہ شجر کاری ہو۔ پھر اخباروں میں دیکھتا ہوں کہ شجر کاری کے اس نے اتنے کروڑ حکومت پاکستان نے درخت لگائے، محکمے نے درخت لگائے، لیکن کچھ عرصے کے بعد نہیں معلوم وہ درخت کہاں چلے جاتے ہیں۔ بات یہ ہے، جہاں تک میں سمجھا ہوں، کہ درخت لگانے کے بعد آپ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کوئی درخت بھی لگایا تھا، اس کو وقت پر پانی بھی دینا ہے، اس کو وقت پر کھاد بھی دینی ہے، اور جب وہ خود اپنی اس کی جڑیں زمین سے اپنا رزق کشیدہ کرنے کے قابل ہو جائیں تو پھر مالی کی طرح بے پرواہ ہو جائیں۔ جس طرح یہ بالکل ماں اور بچے کا سوال ہے، جس طرح ماں چھوٹے بچے کو سارا دن گود میں لیے پھرتی ہے، اس کی خوراک کا خیال کرتی ہے، اس کا وقت پر دودھ، وقت پر رونا، وقت پر جاگنا، وقت پر سونا، یہ ساری باتیں ماں کے لیے حفظ ہوتی ہیں۔ اسی طرح مالی کا بھی کام ہے کہ جب وہ کوئی شجر کاری کرے، درخت لگائے، تو پھر اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو کب پانی دینا ہے، کب اسے کھاد دینی ہے، کتنا عرصہ اس کو دھوپ سے بچانا ہے، اور مالی کا کم پانی دینا پر پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لاؤنا، لاوے پاواں نہ لاوے۔ ایک چینی کہاوت ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا نام زندہ رہے تو ایک بیٹا پیدا کرو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایک درخت لگا دو۔ یہ دونوں چیزیں تمہیں دیر تک زندہ رکھیں گی زمانے کے ہاتھوں کہ یہ درخت اس کا لگایا ہوا ہے۔ اور یہ نہ ہو کہ آپ درخت لگا کے اس کو بھول جائیں، کوئی جنگلی جانور منہ مار جائے، کوئی پتھر کے نیچے آ جائے، تب خشک ہو جائے۔ اور وہ یہاں پر بات ختم کرتا ہوں کہ بعض درختوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ زبان حال سے پکارتے ہیں کہ سایہ طلب گئے جدھر، بول اٹھے وہی شجر، آئے ہو اب مسافرو جب ہمیں دھوپ کھا گئی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ گوفی جم سم چیوسٹک ان کی کینڈیز ہیں، اور پہلا سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں یوم الفرقان کس دن کو کہا گیا ہے؟ غزوہ بدر کو۔ غزوہ بدر جواب درست ہے، تشریف لے آئیں۔ انگلش الفابیٹ ایس جے کس جنگی اعزاز کا مخفف ہیں؟ ستارہ جرت۔ ستارہ جرت جواب درست ہے، تشریف لیں۔ دونوں مہمان گوفی جم سم چیوسٹک کے تھے۔ گوفی جم سم کے انعامات اور کیش لفافیہ آپ کے سامنے ہے، آپ کو مبارک ہو۔ بسم اللہ۔ لاسانی جوشاندہ پلس ملٹھی کے مہمان، آج ان کا سیمی فائنل ہے، تشریف لے آئیں۔ عارفہ آفتاب اور طاہر الطاف۔ آپ دونوں مہمان ہیں لاسانی جوشاندہ پلس ملٹھی کے۔ کہتے ہیں کہ 100% نیچرل
मसनूई फ्लेवर से पाक, कदीम नुस्खा जदीद तहकीक, जोशांदा प्लस मलट्ठी। लासानी का जोशांदा प्लस मलट्ठी, कदीम नुस्खा जदीद तहकीक, लासानी का जोशांदा प्लस मलट्ठी। आपसे पहला सवाल है अल्ताफ साहब, ऐलान नबूवत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ी पर चढ़कर लोगों को इस्लाम की दावत दी, उस पहाड़ी का नाम क्या है? जबल सौर। ये है जी कोहे सफा। गलती हो गई जी। आपकी बारी है जी। सवाल ये है जो लासानी पूछते हैं, अमेरिका के महकमा दिफा का मखसूस नाम क्या है? ये है जी पेंटागन। गंधारा तहजीब का मरकज कौन सा शहर है? टेक्सला। टेक्सला जवाब दुरुस्त है जी। अटक के मकाम पर दरियाए सिंध से कौन सा दरिया मिलता है? ये है जी दरियाए काबुल। हजर अस्वद को जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा में नस्ब किया तो उस वक्त आपकी उम्र मुबारक क्या थी? 35 साल। 35 बरस जवाब दुरुस्त है जी। पाकिस्तान में सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? गुद्दू। ये है कोट अद्दू पावर स्टेशन, मुजफ्फरगढ़, पंजाब। चौधरी रहमत अली ने 1933 में एक तंजीम किस नाम से कायम की? पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट। और 1933 में ही चौधरी रहमत अली ने हमारे इस मुल्क का नाम पाकिस्तान रखा था जी। 15 फरवरी को उर्दू और फारसी के किस अजीम शायर की बरसी मनाई जाती है? पैदाइश 1757 है और वफात 1859 है। मिर्जा गालिब। शुक्र है खुदा का, एक जवाब दुरुस्त है। मिर्जा गालिब जी जो सूरत हाल है बता दीजिए जी। जो शानदा प्लस मलट्ठी के पहले सेमीफाइनल में ताहिर अल्ताफ आपने 2 सवालों के जवाब देते हुए 200 नंबर हासिल किए हैं और आरफा आफ्ताब आपने सिर्फ 1 सवाल का जवाब देते हुए 100 नंबर हासिल किए हैं। तो फाइनल ताहिर अल्ताफ आप खेलेंगे। लासानी की तरफ से अब आपने फाइनल खेलना है जी, और तैयारी पूरी करके आइएगा अगले प्रोग्राम में। और लासानी की तरफ से आपको उनके तोहफे और ये लिफाफा जिसमें कैश है, डबल कैश आपके लिए। और आपने एक सवाल का जवाब दे ही दिया तो आपको भी कैश और उनका तोहफे हैं लासानी के। मुबारक हो जी। आपके लिए तोहफा भेजा है दीवान फूड्स ने। दीवान फूड्स अपना पैगाम देते हैं कि लाइफ विद स्पाइस। सवाल बड़ा आसान है, फूलों का मुल्क किस मुल्क को कहा जाता है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जवाब दुरुस्त है जी। दीवान फूड्स के ये दोनों तोहफे आपको मुबारक हो बेटा। जी टोकन के बगैर पेंट्स बनाने वाले इदारे मास्टर पेंट्स ने ये वॉशिंग मशीन का तोहफा भेजा है। ये उस जोड़े के लिए है जो इस वक्त इस छत के नीचे नया नवीला जोड़ा हो। जी भाई, ये खुशगवार हादसा कब हुआ? 21 जनवरी
सन 2018 21 जनवरी 2018 7 जनवरी 2018 7 जनवरी 18 17 सितंबर 17 17 सितंबर 17 22 जनवरी 2018 22 जनवरी 18 19 दिसंबर 17 19 दिसंबर 17 24 सितंबर 2017 24 सितंबर 17 22 जनवरी 2018 वाले कौन दोस्त हैं? बाईस जनवरी 2018। अच्छा, आप इधर आ जाए खातून, निकाह नामा तो होगा। नाम वाम आपका कहीं लिखा ही नहीं है क्या? मोहल्ले वालों का ले आए? चलिए, बहरहाल है तो सही चीज। ये बताएं कि खैर से बारात में कितने लोग आए थे? तकरीबन 350 होंगे। तकरीबन 350। और बारात में खाने को क्या दिया था इन्होंने? कोरमा था, साथ में वो था जर्दा था और नान वगैरह। खुश हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ कहाँ की सैर की? मड़ी गए हैं वैसे फिलहाल तो खाली। लीजिए जी, आप आखिरी काम कर दें, ये तो पकड़े जरा। एक घुटना टेक के फूल पेश करें। आप आगे आए, आप उधर बढ़ने क्या? चलिए जी, आपको मुबारक हो और अल्लाह आप सबको तादेर खुशो खुर्रम रखे और ये कामयाब व कामरान रहें आपके जोड़े। प्रोग्राम ख़त्म हो तो अब ये वॉशिंग मशीन आपकी अमानत है, इसको लेकर जाइएगा जी। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बोरी रेस है, ये जो केस पड़ा है वो स्याह रंग का आप देख रहे हैं जी, आप भी देख लें। इसके ऊपर से होके आपने वापस आना है और यहीं अपनी जगह पर जो पहले पहुंच जाएगा वो विनर होगा। वाइटल चाय बनाने वालों का तोहफा है। वाइटल चाय अपना पैगाम देते हैं कि वाइटल चाय पियो, जिंदगी जियो। 1 2 गो। जी, वाइटल ब्यूटी सोप की तरफ से आपने बोरी रेस में कमाल कर दिखाया, आप गिरे भी नहीं। उनकी तरफ से उनके तोहफे हैं और कैश का लिफाफा भी मौजूद है। बिस्मिल्लाह। जी, दोस्तों के लिए RBS सैनिटरी फिटिंग बनाने वाले कहते हैं कि हमारा मयार हमारी पहचान। RBS सैनिटरी फिटिंग। सवाल यह है कि आबे हयात उर्दू की एक मशहूर किताब है, इसे मुसन्निफ का नाम बता दें। मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। आ जाओ आ जाओ। जी, आप दोनों मेहमान हैं विगोरीन के। विगोरीन अपना पैगाम देते हैं कि साल हर साल से समझदार माओं का इंतखाब, माँ का प्यार और विगोरीन यकीनन बेहतरीन। विगोरीन
विगोरीन 16 साल से समझदार माँ। क़याम पाकिस्तान के तकरीबन कितने साल बाद इस्लाम आबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बना? तकरीबन 13 या 14 साल बाद। नहीं जी, ये कमोबेश 20 बरस के बाद जी। 23 मार्च 1985 को किसने पाकिस्तान के वजीर आजम के ओहदे का हल्फ उठाया? बेनजीर ने। ये थे जनाब मोहम्मद खान जुनैजो। गलती। उर्दू के मशहूर शायर मुसफ़ी का असल नाम क्या था? गुलाम हमदानी मुसफ़ी। गुलाम हमदानी मुसफ़ी। हम तो ये समझे थे कि होगा कोई जख्म, तेरे दिल में तो बड़ा काम रफू का निकला। किस सन में दुनिया का कौन सा मुल्क दुनिया की पहली कम्युनिस्ट हुकूमत बन गया? फ्रांस। रूस, मिस्र और इराक में इंसानी आबादकारी का आगाज कब हुआ? तकरीबन 2000 साल कबले मसीह। कमबेश 5000 साल कबले मसीह, लेकिन मैं जवाब दुरुस्त मान लेता हूं जी। रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कौन सा है? इंडोनेशिया। काज़किस्तान। शॉर्ट हैंड का मूजिद कौन था जी? सर आइजक पिटमैन। आइजक पिटमैन जवाब दुरुस्त है जी। हमारे निजाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा कौन सा है? अतारत। जुपिटर। मुश्तरी। गलती। आपने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, तो इसलिए कैश तो मैं आपको नहीं दे रहा। आपका कैश मैं इधर दे रहा हूं जिन्होंने 3 सवालों के जवाब दिए हैं जी। विगोरीन के ये तोहफे आपके साथ जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया जी। जी ख़वातीन और हज़रात, सवाल जवाब का सिलसिला वक्ती तौर पर मौकूफ़ करते हैं और पसे पर्दा एक बहुत अच्छी गुलकारा मौजूद है, उन्हें सामने लाते हैं। और ये मेहमान हैं सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी की। कहते हैं कि कम खर्च और उजली धुलाई के और पाउडरों से बेहतर सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी। सूफी सोप की मेहमान भरपूर तालियों में इस्तकबाल नगमाना जाफरी। सूफी सोप ने आपके लिए फूल और ये तोहफे भेजे हैं। आपको मुबारक हो। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। आप दोनों मेहमान हैं एल्सोवीना के। एल्सोवीना अपना पैगाम देते हैं कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा मैदे के अल्सर और तेजाबियत के लिए लासानी का एल्सोवीना सफूफ और सिरप में भी दस्तयाब। लासानी का एल्सोवीना। अल्सोवीना मैदे के अल्सर और तेजाबियत को खत्म कर। सार्क ममालिक में रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा और सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? नो। सबसे बड़ा मुल्क है जी भारत और सबसे छोटा मुल्क है मालदीव। यौम पाकिस्तान के मौके पर फ्लाई पास्ट की क़यादत कौन करता है? सदर पाकिस्तान। चीफ ऑफ एयर स्टाफ। गलती। कुतुब जुनूबी और कुतुब शिमाली में कौन सा कुतुब ज्यादा सर्द है? कुतुब शुमाली। कुतुब जुनूबी ज्यादा सर्द है जी। दुनिया के तमाम समुद्रों की औसत गहराई कितने मील है? कोई और सवाल है, एक पूछ लें। नहीं, कोई और सवाल नहीं, सवाल यही है। और सुन लें जी कि दुनिया के तमाम समुद्रों की औसत गहराई कितने मील है? जवाब है 2 मील। किसके घर जाएगा सैलाब बला मेरे बाद?
शेर मुकम्मल कर दें। मिर्जा गालिब का शेर है, इसका पहला मिसरा क्या है? दूसरा मिसरा है, किसके घर जाएगा सैलाब बला मेरे बाप। आए है बेकसिए इश्क पे रोना गालिब, किसके घर जाएगा सैलाब बला मेरे बाद। गलती। ख्योड़ा में नमक की कान के अंदर सारा साल एक ही दर्जा हरारत रहता है, कितना? 45 18 सेंटीग्रेड। एल्सोविना के मेहमान, आपसे आखिरी सवाल। मुमताज शायर फैज अहमद फैज का इंतकाल कब हुआ? 20 नवंबर 1984 को जी। आखिरी सवाल, वो कौन सा उमवी खलीफा था जिसने सिंध के हुक्मरानों और वडेरों को दावत इस्लाम के खतूत लिखे? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया, बस दोनों बोतलें उठाएं और घर जाएं। ये शरबत की बोतलें हैं जी, ये आपके लिए। जी, बैतबाजी का मरहला शुरू होता है। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से राबिया लतीफ और अनीक नव्वाब। जी, ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, आप मेहमान हैं लासानी तूतस्या प्लस मलठी के। कहते हैं कि टॉन्सिल्स के ऑपरेशन से पहले जरूर इस्तेमाल करें लासानी तूतस्या प्लस मलठी। लासानी का असल तूतस्या। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, मैसम अब्बास और मोहम्मद रजा मेहमान बनते हैं टोकन के बगैर पेंट्स बनाने वाले मास्टर पेंट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। मास्टर पेंट। दूसरा सेमीफाइनल है जी, इसलिए हमने फैसला अपने हाथ में नहीं रखा, बल्कि फैसले के लिए हमने पाकिस्तान के एक नामवर शायर को दावत दी है, कैप्टन रिटायर्ड अता मोहम्मद खान। वो सामने तशरीफ फरमा है। इनका फैसला आखिरी और कतई होगा जी। पहला शेर मैं दे देता हूँ, फिर उसके बाद आप आगे चलिएगा। क्यों सबा की न हो रफ्तार गलत, गुल गलत, गुंचे गलत, खार गलत, एक दरिया है बस अपने रुख पर, कश्तियां आर गलत, वार गलत, वक्त उलट दे न बिसाते हस्ती, चाल हम चलते हैं हर बार गलत। क्यों सबा की न हो रफ्तार गलत, गुल गलत, गुंचे गलत, खार गलत। तो तिफलाने शहर को कोई दीवाना चाहिए, ऐसे में तुमको घर से निकल आना चाहिए। ये रूहानी है चाहे जीनी आती मसाला है, मेरे दुश्मन का गम भी मेरा जाती मसाला है। ये हम फकीर जो कम कम धमाल डालते हैं, जमीन हिलती है जिस दम धमाल डालते हैं। नौजवान बेटों को शहरों के तमाशे ले उड़े, गाँव के आंगन में कुछ मजबूर माएं रह गईं। न रहा जुनून रुखे वफा, ये रसन ये दार करोगे क्या, जिन्हें जुर्म इश्क पे नाज था वो गुनाहगार चले गए। वो गुनाहगार चले गए, आपने गुनाह पड़ा, बहरहाल चले गए। ये जी, यही कुछ सोचती रहती है एक दहकान की बीवी, वो जब भी शहर जाएगा मेरे कंगन खरीदेगा। एक गजल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, एक नमी सी मेरी दीवार में आ जाती है। ये शहर छीन लेता है नक्शो निगार तक, आता हूँ रोज घर में निशानी बता के मैं। नाम तो नाम मुझे शक्ल भी अब याद नहीं, हाय वो लोग, वो आसाब पे छाए हुए लोग। घर से चला तो घर की उदासी सिसक थी, मैंने उसे भी रख लिया रखते सफर के बीच। चीजें गिरती गईं,
रस्ते में फटे थैले से चोर गफलत में ठिकाने का पता छोड़ गया। अलिफ। एक रंज खा रहा है मुसलसल दिमाग को, बारिश में रख दिया है किसी ने चराग को। वो गांव का एक ज़ईफ दहकां सड़क के बनने पे क्यों खफा था, जब उसके बेटे शहर को जाकर कभी न लौटे तो लोग समझे। ये दुआएं मांगना कि बेटियों की खैर हो, जब कभी मेले में बिकती चूड़ियों को देखना। आखिर को किसी बात पे हंस पड़ेंगे, रोना तमाम उम्र का बेकार जाएगा। इससे पहले कि यही काम जमाना कर दे, मान ले बात मेरी मुझको रवाना कर दे। ये कच्चे फर्श की बैठक गरीब घर की है, यहाँ गिलास नहीं मेजबान टूटता है। यादों के दरीचों को जरा खोल के देखो, हम लोग वही हैं कि नहीं बोल के देखो। वो बात याद आई नहीं उसको देखकर, जिस बात पर हम एक जमाना नहीं मिले। यारों की खामोशी का भरम खोलना पड़ा, इतना सकूत था कि मुझे बोलना पड़ा। ऐ मुझे सब्र के आदाब सिखाने वाले, जब वो बिछड़ा था वो मंजर नहीं देखा तूने। ये चाय खाने की मेजों पे कहकहों के शरीक, दिलों में झांक के देखो तो सबके सब तन्हा। अभी तक मैं कटहरे में खड़ा हूँ, मेरी मुट्ठी में तितली मर गई थी। ये आंख मुफ्त में कुछ भी नहीं दिखाती मुझे, मैं इसको ख्वाब दिखाता हूँ और देखता हूँ। नजर आए तो उसे देखते रहना कि वो शख्स ख्वाब है और मुकर्रर नहीं होने वाला। आंगनों में दफन होकर रह गई सब ख्वाहिशें, हाथ पीले होते होते रंग पीले हो गए। ये जरूरी है इन्हें कल की जमानत दी जाए, वरना सड़कों पर निकल आएंगे हमारे बच्चे। यही तो होता है उजलत में घर बनाने से, कहीं की ईंट कहीं पर लगाना पड़ती है। ये जो दीवार से लग जाते हैं चलते हुए लोग, आपका रास्ता हमवार किया जाता है। आपका रास्ता हमवार किया जाता है। ये यहाँ तो शहद की मक्खी भी खुश नहीं रहती, ये शहर चादरें फूलों पे तान देता है। यूं तराशूंगा गजल में तेरे पैकर के नुकूश, वो भी देखेगा तुझे जिसने तुझे देखा नहीं। नून। नहीं मियाँ, भला तलवार क्यों निकालूं मैं, अगर मैं लफ्ज की ताकत से जीत सकता हूँ। नारसाई की कसम इतना समझ में आया, हुस्न जब हाथ न आया तो खुदा कहलाया। एक किरदार की उम्मीद पे बैठे हैं ये लोग, जो कहानी में हंसाने के लिए आता है। ये तेरे बात खुला है कि जुदाई क्या है, मुझसे अब कोई अकेला नहीं देखा जाता। इतना बिखराव सिमटने में कहाँ आता है, घर की हर चीज को आदत है तेरे हाथों की। ये नहर उसकी है, इस पर किनारा उसका है, वो जिसके साथ है लाहौर सारा उसका है। ये जरूरी तो नहीं हीर फकत झंग से हो, यार का शहर तो लाहौर भी हो सकता है। हो सकता है। ये यारो मुझे मसलूब करो तुम के मेरे बाद, मुमकिन है तुम्हारा कदो कामत निकल आए। याद कर लेते हैं हर रोज तेरे मिलने को, दूसरे शहर से आया तो नहीं जा सकता। अरे ये सिर्फ बहाना है बात करने का, मेरी मजाल में झगड़ा करूं जनाब के साथ। आप ते का शेर पढ़ सकते हैं। तुम बहुत दूर और मेरे पास, एक ही समत का किराया है। ये तीर यूं ही दुश्मनों तलक नहीं जाते, बदन का सारा खिंचाव कमां पे पड़ता है। ये मस्खरों को वजीफे यूं ही नहीं मिलते,
रईस खुद नहीं हंसते हंसाने पड़ते हैं। वाह, हंसाने पड़ते हैं। नून। नींद रूठे हुए लोगों को मना लाई है, आंख खोलूंगा तो ये फिर से बिछड़ जाएंगे। ये गर्द बैठ जाए तो मालूम कर सकूं, आंखें नहीं रहीं कि तमाशा नहीं रहा। आंखें नहीं रहीं कि तमाशा नहीं रहा। बस जी, जो वक्त आप दोस्तों के लिए मखसूस था वो तमाम हुआ। जनाब अता मोहम्मद खान, अगर उन्होंने नतीजा मुरतब कर लिया हो तो तशरीफ ले आए। पहले अपने अशार, उसके बाद फिर नतीजा। आप इजाजत दें तो सर अपनी पंजाबी नज्म में पेश कर देता हूँ। चलिए जी। मैं तख्त हजारा छड़ के आ बैठा तेरे कोल। मैं तख्त हजारा छड़ के आ बैठा तेरे कोल। तू काफी शाह हुसैन दी मैं वारिस शाह दे बोल। वाह। तू काफी शाह हुसैन दी मैं वारिस शाह दे बोल। तू हीर से आलन जाप दी तेरा रूप खुदा दी शान। तू हीर से आलन जाप दी तेरा रूप खुदा दी शान। तेरे लौंग च सूरज लिशकदा तेरे नैना विच कुर्बान। वाह। तेरे लौंग च सूरज लिशकदा तेरे नैना विच कुर्बान। नी कुड़िए उड़ पड़ जानिए सानू रावां विच न रोल। तू काफी शाह हुसैन दी मैं वारिस शाह दे बोल। और शेर देखिएगा, मेरा प्यार निरा पंजाब है। मेरा प्यार निरा पंजाब है, मेरा दिल पिपल दी छां। मेरा सीना सतलुज वगदा दिल वसदा होया ग्रां। वाह। मैं तेरे वर्गा जापदा आ बह जा मेरे कोल। तू काफी शाह हुसैन दी मैं वारिस शाह दे बोल। और तारिक भाई आखिरी बंद देखिएगा, आ नफरत इथों कढ़िए। आ नफरत इथों कढ़िए ते करिए प्यार दी गल। आ नफरत इथों कढ़िए ते करिए प्यार दी गल। ए बंदे भुखे प्यार दे कोई सुख सुनेहा कल। वाह। आ नफरत इथों कढ़िए ते करिए प्यार दी गल। ए बंदे भुखे प्यार दे कोई सुख सुनेहा कल। मैं पग बन्ना पंजाब दी तू चुन्नी सिर ते खोल। तू काफी शाह हुसैन दी मैं वारिस शाह दे बोल। वाह, माशाअल्लाह। बहुत मयारी शेर आए। तो मेरे हिसाब से ये जो टीम 1 है इनके अशार बड़े मयारी थे। जी, जज साहब की मौजूदगी में मैं इनका फैसला दोहराए देता हूं। इनके फैसले के मुताबिक आज बैतबाजी के दूसरे सेमीफाइनल में मास्टर पेंट्स की टीम जीत गई है और लासानी तूतसिया की टीम दूसरे नंबर पर रही है। जी, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से मैसम अब्बास और मोहम्मद रजा आज के फातेह ठहरे। और ज़रई यूनिवर्सिटी फैसल आबाद से राबिया लतीफ़ और अनीस नवाब आप दूसरे नंबर पर आए। जी, उनके तोहफे दोस्तों के आपके सामने हैं, ये कबूल कीजिए और बिस्मिल्लाह। जी, वाइटल ब्यूटी सोप के आप मेहमान हैं चारों, और किस है जो ज्यादा नंबर हासिल करेगा वही जीत जाएगा। इसमें ये देखने की बात है कि ये सुर्ख रंग जो है ये खतरे की निशानी है, ये मनफी हो जाएंगे नंबर, और बाकी ओपन है आपके सामने। जहां कुछ नहीं लिखा हुआ उसके 100 नंबर हैं। जी, पहले मेहमान आ जाएं। जी, यहां से 2 तीर उठा लें। यस, $35 नंबर। जी, दूसरा तो इन्होंने गिरा दिया। जी,
22 नंबर जी इसको जी। चलिए 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 दूसरा। 100 तो माइनस हो गए और 46 नंबर हासिल किए। 100 में से 46 निकाल दें, वो इन पर हमारा कर्ज है जी। जी दूसरा। 7 नंबर है जी। जी वाइटल ब्यूटी सोप की किस्मत के चक्कर में आयशा आपने 35 नंबर हासिल किए हैं। आसफा आपने 22 नंबर हासिल किए हैं। फौजिया आपने हमारे 54 नंबर देने हैं और रिमशा आपने 7 नंबर हासिल किए हैं। तो आयशा और फौजिया आप लोगों ने क्योंकि ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं तो वाइटल ब्यूटी सोप के कैश प्राइजेस आपके लिए, और फौजिया और रिमशा आप लोगों के लिए वाइटल ब्यूटी सोप के गिफ्ट। थैंक यू सो मच। जी आपके लिए तोहफा भेजा है दीवान स्ट्रॉन्ग चाय बनाने वालों ने। दीवान स्ट्रॉन्ग चाय बनाने वाले पैगाम देते हैं, दीवान चाय पियो चुस्ती से जो। दीवान चाय। सवाल सुन लीजिए, बड़ा आसान है और जिनको नहीं आता उनके लिए मुश्किल है। उस मशहूर जंगजू हमला आवर का नाम बताइए जो अपने हमले के वक्त कहा करता था कि आसमान पर सिर्फ एक खुदा, एक सूरज और धरती पर सिर्फ एक खान है। कौन था ये? चंगेज खान। चंगेज खान। जी लासानी अर्क महजल का मरहला है और उनका पैगाम है, वजन घटाएं सेहत पाएं। लासानी अर्क महजल। लासानी का अर्क महजल। वजन घटाएं सेहत पाएं। मोटापे कल्चर का आज फाइनल है। जीतने वाले के लिए 10,000, सेकंड के लिए 5,000, थर्ड के लिए 3,000। तो नाम मैं पुकारता हूँ, तशरीफ ले आए। मदिया फारूक, मिसेस मोहम्मद अख्तर, हबीबा, हिना मोहसिन, फायजा जफर, जरलिश और समन मुस्तफा। मिसेस अख्तर और फायजा जफर नहीं आए। मुझे 2 मेहमान चाहिए, किस्मत का खेल है जी। लासानियर के महजल का मरहला है 1, 2, गो। एक, दो, गो। एक, दो, गो। One, 2, go!
फर्स्ट आई हैं आपके लिए 10,000 रुपया है जी। आप मेरे साथ गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप सेकंड आई हैं, आपके लिए एल्सोविना के तोहफे और उनके फूल 5,000 रुपया आपके लिए है जी। और आप थर्ड आई हैं, आपके लिए फूल और 3,000 रुपया है जी। जी ख़वातीन हज़रात, अपने अपने कार्ड्स निकाल लें। इसमें से मैं इसको घुमा के, और फिर 3 कुर्रा अंदाजियां हैं, 3 इनामात हैं, कैश भी है और तोहफे भी हैं जी। $337, 338 दूसरी कुर्रा अंदाजी। और ये कुर्रा अंदाजी वाइटल ब्यूटी सोप की तरफ से है। कहते हैं कि वाइटल ब्यूटी सोप पाकिस्तान का पहला हलाल सोप। हुस्न को देखो एक नजर से, वाइटल ब्यूटी सोप। $495, 496। तीसरी और आखिरी कुर्रा अंदाजी जी, वाइटल ब्यूटी सोप की तरफ से $423, 424। जी आप तीनों मेहमानों का नाम कुर्रा अंदाजी से निकला है। ये कुर्रा अंदाजी वाइटल ब्यूटी सोप की तरफ से है। उनकी तरफ से आप तीनों के लिए कैश और उनके अपने तोहफे और फूलों के तोहफे। आप तीनों को मुबारक हो जी। बिस्मिल्लाह। जी ख़वातीन व हज़रात, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह अगले बुध को फिर हाजिरी देंगे। जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज। वतन अजीज को दुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको हिना समी और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानों को खुश आमदीद। अजीज़ान मन, दुनिया में फसाद की चीजें ज़र, जन, जमीन 3 गिनी गई ना। जमीन के बारे में खुदा ने कह दिया अल अर्ज़ु लिल्लाह, जमीन खुदा की, लिहाजा झगड़ा खत्म हो गया। फिर जन, सूरा निसा में तमाम हुकूक दे दिए गए जो आज तक खवातीन को नहीं मिले थे। पूरी दुनिया में इस्लाम वो पहला दीन है जिसने आकर इस गिरी हुई मखलूक का हाथ थामा और उसको सहारा देकर एक बाइज्जत मकाम अता किया। और तीसरी बात थी ये विरासतें, ये गद्दियां, उस पर भी खुदा ने हिस्से करके दिखा दिए। ये क्यों ऐसा हुआ? बाकी पूरी दुनिया में कितना हम कारोबार करते हैं, कुरान ने उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा, आप करते फिरे। लेकिन इन 3 चीजों के बारे में उसने फैसला दे दिया कि कत्ल हो तो किसास है, और साथ ये कहा कि इसमें तुम्हारे लिए जिंदगी है। ये बातें जी तो बहुत चाहता है कि देर तक आपसे करूं, लेकिन क्या करूं, वक्त
वक्त इजाज़त नहीं देता। आपसे सिर्फ ये गुजारिश है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद जब पढ़ें तो तर्जमे के साथ पढ़ा करें। जो लोग तर्जमे से पढ़ते हैं वो फौज व फलाह भी पाते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि ज़िंदगी तो खाकी है, खाक में खाक होना है। खाक में खाक होने से पहले इस खाक के शिफा को अपने माथे का झूमर बना लें। दुनिया भी खुश, अगली जिंदगी भी खुश। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह का नाम लेकर प्रोग्राम आगाज करते हैं। कोई मेहमान ये बताएगा कि पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है? देवदार। देवदार। आइए जी, पाकिस्तान का कौमी दरख्त देवदार को कहा गया। जवाब दुरुस्त है, तशरीफ लाएं। कोई दोस्त बताएगा कि करारदाद लाहौर को करारदाद पाकिस्तान कब और किसने करार दिया? करारदाद लाहौर था, फिर हिंदुओं ने इसको करारदाद पाकिस्तान कहा, फिर मुसलमानों ने भी ये अपना लिया, मुस्लिम लीग। सुन लीजिए कि आप सब दोस्त तशरीफ लाएं। आपका जवाब दुरुस्त है। करारदाद लाहौर पास हुई थी, लेकिन दूसरे दिन हिंदू प्रेस ने, जिनमें प्रताप और ये दूसरे हिंदू अखबारात थे, इन्होंने इसको कहा कि नहीं, ये कोई करारदाद लाहौर नहीं, ये करारदाद पाकिस्तान है। ये 24 मार्च को जो जितने अखबारात आए सब हिंदू प्रेस ने इसको करारदाद पाकिस्तान लिखा। वो जब इन्होंने कहा ये करारदाद पाकिस्तान है तो मुसलमानों ने कहा कि अच्छा, फिर ये करारदाद पाकिस्तान ही है। दुनिया के 7 अजायबात बहुत मशहूर हैं। इस वक्त इनमें रुए जमीन पर कितने मौजूद हैं? एहराम मिस्र है। सुन लीजिए कि 7 अजायबात जो मशहूर थे, लेकिन अब दुनिया में सिर्फ एहराम मिस्र बाकी है जिनका ताल्लुक अजायबात दुनिया से था। बाकी सब जमाने के हाथों मिट मिटा गए। जवाब दुरुस्त है जी। उस इस्लामी मुल्क का नाम बताएं जिसकी सिर्फ 16% आबादी शहरों में रहती है। जी, आप दोनों मेहमान हैं जिप्सी अमेजिंग क्रीम बनाने वालों के। रंग गोरा करने वाली जिप्सी अमेजिंग क्रीम के सवालों के जवाब आपने दिए। उनकी तरफ से कैश किताब का तोहफा, कैश किताब का तोहफा। और ये इसमें पैसे हैं, अपने बाल ठीक करवा लीजिएगा। आप दोनों मेहमान हैं वाइटल चाय के। वाइटल चाय बनाने वालों ने अपने तोहफे और साथ ही कैश किताब का तोहफा आपके लिए। यही सूरत हाल आपके साथ है। वाइटल के तोहफे आप दोनों को मुबारक हो जी। ये मरहला ब्राइटो पेंट्स बनाने वालों की तरफ से पेश किया जा रहा है। उनका कहना है कि रंगों को जब ज़बान मिलती है बिखर जाते हैं हर सू खुशियों के पल। ब्राइटो पेंट्स हर दीवार से छलके प्यार। रंगों को जब जुबान मिलती है बिखर जाते हैं हर सू खुशियों के पल। ब्राइटो पेंट्स हर दीवार से छलके प्यार। माउंट एवरेस्ट की बुलंदी मालूम होने से पहले दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ कौन सा था? केटू। भाई माउंट एवरेस्ट ही था। ये और बात है कि देर में नापा गया तो पता चला ये सबसे बुलंद पहाड़ है, तो नापने से पहले थी कोई। गलती होगी जी। अब आपकी बारी है जी। ब्राइटो पेंट्स की मेहमान मुआहिदा इस्तांबुल के रुकन ममालिक
कौन कौन से हैं जिन्हें RCD ममालिक भी कहा जाता है? पाकिस्तान, तुर्की और ईरान। सुन लीजिए, RCD ममालिक में पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ये 3 मुल्क शामिल हैं। जवाब दुरुस्त मानते हैं जी। आपसे सवाल है जी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम के बाद उसका पहला बाकायदा सदर किस मुमताज लीडर को बनाया गया? कायदे आज़म। सर आगा खान सोइम मुस्लिम लीग के पहले सदर बने थे। गलती हो गई जी। आपकी तरफ सवाल आया है कि दुनिया की पहली लाइसेंस याफ्ता हवाबाज खातून का ताल्लुक किस मुल्क से था? अमेरिका। ये था जी फ्रांस। 6 मार्च 1910 में पहली लाइसेंस याफ्ता हवाबाज खातून का ताल्लुक फ्रांस से था जी। गलती। बशारत मियां, उन पैगंबर का नाम बताइए जिनके हाथ में लोहा नर्म हो जाता था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है जी। दुनिया की सबसे कदीम जबान का नाम बताइए जो 6000 साल से अब तक बोली जा रही है। फारसी। नहीं जी, आप बताना चाहेंगे? चाइनीज। चीनी जबान। जवाब दुरुस्त है जी। 6000 साल से चीनी जबान बोली जा रही है और अब तक बोली जा रही है, और चीन ने अपनी जबान में हर काम करके दुनिया में जितनी तरक्की की है आपके सामने है। पता चला कि जो कौमें अपनी जबान, अपनी सकाफत, अपने लिबास, अपनी तारीख, इसकी हिफाजत करती हैं, वो दुनिया में मकाम हासिल कर लेती हैं। आपकी बारी जी। ब्राइटो पेंट्स की तरफ से आज तीसरा प्रोग्राम है। खलाबाजों का सूट किस चीज के धागों और रेशों से तैयार किया जाता है? मेटल्स। जी। शीशे के रेशों से बनाया जाता है सर। शीशे के रेशों से, शीशे के धागे से और रेशों से ये खलाबाजों का सूट बनाया जाता है। जवाब आपका दुरुस्त है। ब्राइटो पेंट्स बनाने वालों की तरफ से मोटरसाइकिल है। इंसान अजीम है खुदाया उर्दू के किस मशहूर अदीब व शायर की नज्म है? फैज में फैज तो नहीं सर। मंसूर। अहमद नदीम कासमी। रेत से बुत न बना है मेरे अच्छे फनकार, एक लम्हे को ठहर मैं तुझे पत्थर ला दूं। गलती हुई जी। अब आपकी बारी जी। ब्राइटो पेंट्स की मेहमान, टोक्यो शहर की आबादी ज्यादा है या मॉस्को की? टोक्यो। पक्की बात? जी। जवाब दुरुस्त है। पाकिस्तान में सबसे कम शहरी आबादी वाला इलाका कौन सा है? गिलगित बल्तिस्तान से। अच्छा, अब इसका इलाका ये था जी फाटा। फाटा में शहरी आबादी बहुत कम है, बाकी वो जिस तरह से रहते हैं आप बेहतर जानते हैं जी। गलती हो गई जी। बशारत इकबाल, आपके 3 जवाब दुरुस्त हैं, आपके 2 जवाब दुरुस्त हैं। तो एक सवाल के जवाब पर आप मुकाबले में आगे नहीं जा सकेंगी। ब्राइटो पेंट्स की भेजी हुई मोटरसाइकिल का तीसरा प्रोग्राम बशारत इकबाल आपने जीत लिया। ब्राइटो पेंट्स ने आप दोस्तों के लिए कैश किताब का तोहफा भेजा है, ये आपके साथ भी जाएगा और कैश किताब आपके लिए भी जी। बिस्मिल्लाह। थैंक यू।
इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको इकरा बिलाल और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानों को खुश आमदेद। अजीज़ान मन, पिछले कुछ दिनों से अखबारात में और टेलीविज़न पर आप देख रहे होंगे बच्चों को अगवा किया जाता है और उसके बाद उन्हें जान से मार दिया जाता है। अब जब ऐसी सूरत हाल हो तो फिर माँ बाप की जिम्मेदारी दोगुना हो जाती है कि वो अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। उनकी तवज्जो उन पर होनी चाहिए कि बच्चा हमारा किन दोस्तों में जाता है, किन लोगों में उठता बैठता है। और मैं आपको बताऊं कि ये इस तरह के जो जराइम पेशा लोग होते हैं, ये मोहल्लों में जो छोटी दुकानें होती हैं, कोई करियाने की दुकान है या कुछ है, और आप बच्चों को वहाँ कोई सौदा लेने भेज देते हैं कि ये पास ही तो है। वहाँ फिर अगर मुजरिमाना जहनियत का कोई शख्स हो तो वो एक टॉफ़ी दे देगा बच्चे को कि लो खा लो। अब बच्चा और मिठाई और टॉफ़ी इस तरह की उस बेचारे को क्या पता होता, वो लेके खा लेता है बल्कि मज़े मज़े से, और दूसरे दिन फिर वो कुछ ऐसी हरकत कर देता है। और एक दिन जब वो उसका पूरा एतमाद हासिल कर लेता है तो फिर वो उसकी उंगली पकड़ के क्या हो तुम्हें बाग दिखाऊं, मैंने वहाँ तुम्हारे लिए ये कुछ रखा हुआ है, ये कुछ रखा हुआ है, और उसके बाद वो बेचारा जान से जाता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इवन आपके घर का नौकर जो है, आपका ड्राइवर जो है, आपका पड़ोसी जो हैं, ये ज़माना वो है कि कतअन किसी पर एतबार न करें, बल्कि अपने बच्चों को अपने साथ रखें, साथ लेके जाएं और उनको अकेला ना छोड़ें। और इस बात पर ध्यान रखें कि इसकी सोसाइटी कौन सी है, ये किन बच्चों में उठता बैठता है, इसके दोस्त कौन है। और कभी अपने बच्चों को उनकी बड़ी उम्र के लोगों में खेलने वेलने की इजाज़त ना दें। 2 दिन से खाना खाने को जी नहीं चाहा। ये कसूर में कोई 12 बच्चे पिछले 1 साल में उनको कत्ल किया गया है, बच्चों को, बच्चियों को। तो अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें, ये आपकी दौलत है, आपकी आंखों के तारे हैं। तो आंखों के तारों को फिर हिफाजत भी उनकी उतनी ही करनी चाहिए। इवन जब वो पड़ोस में या इधर उधर कहीं ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, कुरान पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ भी साथ कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। यूं अकेले अंधेरी गलियों में उनका जाना ठीक नहीं है जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं एक और नौजवान को सामने ला रहा हूँ। जी यासिर, मेरा आपसे सवाल है, अजीम अफसाना नगार सादत हसन मंटो का इंतकाल कहाँ हुआ और वह कहाँ दफन है? लाहौर में इंतकाल हुआ और लाहौर में मदफन है। बयानी साहब, जवाब दुरुस्त है। ये बड़ा लिफाफा और छोटे लिफाफे में आपके लिए कैश है। बिस्मिल्लाह। जी लासानी जो शानदार प्लस मिलिट्री के सब सवालात हैं। लासानी अपना पैगाम देते हैं कि लासानी जो शानदार प्लस मिलिट्री 100% नेचुरल मसनूई फ्लेवर से पाक, कदीम नुस्खा जदीद तहकीक जो शानदार प्लस मिलिट्री। लासानी का जो शानदार प्लस मिलिट्री, कदीम नुस्खा जदीद तहकीक, लासानी का जो शानदार प्लस मिलिट्री। पाकिस्तान की मशरकी सरहदें किस मुल्क से मिलती हैं? इंडिया से। हिंदुस्तान से, इंडिया से। जवाब दुरुस्त है जी। माफिया एक दहशत पसंद तंजीम है, बताइए इसका आगाज किस मुल्क से हुआ? इटली से।
اٹلی سے یہ تنظیم جس کا مقصد ڈرانا دھمکانا تشدد وغیرہ تھا پہلی بار 1860 میں سرگرم عمل ہوئی. دوسری جنگ عظیم میں اس کی سرگرمیوں میں بہت اضافہ ہو گیا تھا. اس دہشت پسند تنظیم کا نام ہے مافیا. جواب درست ہے. لاسانی جوشاندہ پلس ملٹری پوچھتے ہیں نیو یارک میں واقع دنیا کے سب سے بڑے مجسمہ آزادی کی اونچائی کتنی ہے؟ 100 فٹ. آپ نے فرمایا 100 فٹ. یہ 152 فٹ ہے. 152. غلطی ہو گئی جی. داور حشر میرا نام اعمال نہ پوچھ، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. کس کا شعر ہے؟ نہیں معلوم. ایم ڈی تاثیر کا شعر ہے جی. قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ایک خواب سے شروع ہوا ہے. بتائیے وہ خواب کیا تھا؟ وہ خواب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے والد گرامی کو یہ بتایا کہ مجھے ابا جان یہ خواب آیا ہے کہ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج یہ مجھے سجدہ کر رہے تھے. جواب درست ہے صاحب. ملکہ برطانیہ انتخابات میں سب سے پہلے ووٹ ڈالتی ہیں یا سب سے آخر میں؟ میرے خیال میں ووٹ نہیں ڈالتی. ملکہ برطانیہ کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے جی. جواب درست ہے جی. حج کے دوران وہ کون سی 2 نمازیں ہیں جو اکٹھی پڑھی جاتی ہیں؟ عصر مغرب کی. عرفات کے بعد حاجی مزدلفہ چلے جاتے ہیں، وہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں وہ اکٹھی پڑھتے ہیں. غلطی ہو گئی جی. آخری سوال آپ سے جی. کوالالمپور کس ملک کا دارالحکومت ہے؟ ملائیشیا کا جی. ملائیشیا. جی جو صورتحال ہے ذرا دوستوں کو بتا دیں. جی لاسانی جوشاندہ پلس ملٹھی کے دوسرے پروگرام میں ذکریہ سجاد آپ نے 2 سوالوں کے جواب دیتے ہوئے 200 نمبر حاصل کیے ہیں، اور طاہر الطاف آپ نے 3 سوالوں کے جواب دیتے ہوئے 300 نمبر حاصل کیے. جوشاندہ پلس ملٹھی کے یہ تحفے اور اس لفافے میں آپ کے لیے کیش ہے. آپ جیتے ہیں جی. آپ کے لیے ڈبل کیش ہے، آپ کے لیے سنگل کیش ہوگا جی، اور یہ تحفے بھی جی. بسم اللہ. جی آپ کے لیے سوال ہے بڑا آسان. جو دوست فلمیں دیکھتے ہیں انہیں تو زیادہ پتہ ہونا چاہیے. پاکستان کی پہلی رنگین فلم کون سی تھی؟ سنگم. سن لیجئے کہ پاکستان کی پہلی رنگین فلم جو تھی اس کا نام تھا سنگم، اور پاکستان کی پہلی فلم جو تھی بلیک اینڈ وائٹ تھی اس کا نام تھا تیری یاد. یہ پھول اور یہ کیش لفافے اور وہ سارے. تین مہمان چاہیے جی جو بوری ریس میں حصہ لے سکیں. جی بھائی ایسا کریں، یہ ایک ایک بوری لے لیں اور اس میں داخل ہو جائیں. وہ جو اینک کا کیس ہے اس کے اوپر سے ہو کے آپ نے اپنی جگہ واپس آنا ہے. جو پہلے آ جائے گا جی. تیار جی؟ 1 2 گو. یہ پھولوں کا تحفہ آپ کے لیے اور لفافے میں کیش ہے، یہ آپ کے لیے جی. ٹوکن کے بغیر پینٹس بنانے والے ادارے ماسٹر پینٹس نے اس میں واشنگ مشین کا تحفہ بھیجا ہے. یہ اس جوڑے کے لیے ہے جو اس وقت اس چھت کے نیچے نیا نویلا جوڑا ہو.
खैर से आप ये बता दें कि ये खुशगवार हादसा कब हुआ था? 6 जनवरी साल भी तो कोई होगा। 2018। 30 दिसंबर 2017। 30 दिसंबर 2017। 18 दिसंबर 2017। 18 दिसंबर 2017। 6 जनवरी 2018 वाले कौन हैं? आप हैं? आपके पास निकाहनामा है? ओह, फिर तो बात बिगड़ गई। आपके पास निकाहनामा है? आ जाएं। ये पूरे मोहल्ले के इकट्ठे कर लाएं। वैसे आपने अक्लमंदी की कि आप इसको ले आई और आपने अपनी कस्टडी में इसे रखा हुआ है। इसे हमेशा अपने पास रखिएगा। बारात में कितने लोग आए थे जी? 100 आए थे इनकी तरफ से। बारात में खाने को क्या मिला था? बारात में क्या था मैं भूल गया। वो कहते हैं मैं भूल रहा हूँ। चिकन पुलाव था, कढ़ाई गोश्त था, एंड फिरनी थी, आइसक्रीम थी। खासा कुछ था यार। आप खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने आपको पहला तोहफा क्या दिया था? रिंग डाली थी सबसे पहले। रिंग? अंगूठी। कितने की आई थी अंगूठी वो? 14,000 की। चलिए ठीक है जी। आप दोनों को खुदा खुश रखे और इसी तरह आप हंसते खेलते जिंदगी गुजारें और आप अच्छी बातें याद रखा करें, भूल ना जाया करें। खास तौर पर किसी के यहाँ कुछ खा के आए तो याद रखा करें कि फलां जगह दावत में ये मिला था हमें। ठीक है जी। एक काम कर दीजिए छोटा सा, ये फूलों का दस्ता पकड़ें और जिस तरह फिल्मों में हीरो एक घुटना टेक के हीरोइन को फूल पेश करता है, आप इन्हें फूल पेश कर दें। आप थोड़े से आगे आए। यस। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा आपको इसी तरह खुशो खुर्रम रखे। मास्टर पेंट्स ने ये वॉशिंग मशीन भेज रखी है। प्रोग्राम खत्म हो तो ये लेकर जाइएगा। अब ये आपकी अमानत है हमारे पास। बिस्मिल्लाह जी। जी आज इस वक्त विगोरीन का मरहला है और विगोरीन का आज फाइनल है और इनका आज बड़ा तोहफा ये फ्रिज है जी। ये सामने आपको नजर आ रहा होगा जी। तशरीफ ले आए वसीम हैदर और उरूज अजीम। विगोरीन आज इनका फाइनल है। विगोरीन अपना पैगाम देते हैं, साल हा साल से समझदार माओं का इंतखाब, माँ का प्यार और विगोरीन यकीनन बेहतरीन। विगोरीन साल हर साल से समझदार माओं का इंतखाब। विगोरीन माँ का प्यार और विगोरीन यकीनन बेहतरीन। पहला सवाल है आपसे उरूज, रियासत के अनासिर कौन कौन से होते हैं? स्टेट, मीडिया, अदलिया का निज़ाम। चैलेंज। मुकन्नना, अदलिया। नहीं, आप तो किसी और तरफ चले गए। दोनों की गलती है जी। रियासत के अनासिर कौन कौन से हैं, ये था सवाल। आबादी, इलाका, हुकूमत और इक़्तिदार आला, ये चार चीजें होती हैं किसी स्टेट के लिए जी। आपकी बारी है जी। K2 दुनिया की कौन सी बुलंद चोटी है? दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। जवाब 28,253 फीट है जी। आपकी बारी है उरूज।
بتائیے ایتھوپیا اور حبشہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ایتھوپیا اور حبشہ ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. ایتھوپیا اور حبشہ کے درمیان آئی تھنک کوئی فاصلہ نہیں ہے دونوں کے درمیان. تو پھر بات کیا بنی؟ کیا یہ دو ہیں یا ایک ہے؟ ایک ہے ایتھوپیا اور حبشہ. دونوں ایک ہی ملک کے نام ہیں جی. گئے زمانے میں اسے حبشہ کہتے تھے اور آج کل اسے ایتھوپیا کہا جاتا ہے. جواب درست ہے جی آپ کا. یہ بتائیے دل اور دل ان کے کیا معنی ہیں؟ یعنی دال پر زبر تو دل بن گیا اور دال کے نیچے زیر تو دل بن گیا. ان دونوں کے کیا معنی ہیں؟ دل ہیومن آرگن ہے اور دل کسی مشکل میں پھنس جانا، کسی مشکل کو بولتے ہیں. فوج، لشکر، گروہ، موٹائی، پتہ، شگوفہ، اس کا مطلب ہے دل. اور دل یہ ہے قلب، کسی شے کا باطن، خواہش، مرضی، حوصلہ، وسط اور مرکز، یہ ہے دل. اب آپ کی باری ہے جی. ریاست میسور جس کا حکمران سلطان ٹیپو تھا اس کو آج کل کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ اس کا نہیں پتا. حیدرآباد دکن. نہیں. اچھا دونوں غلط ہیں. اور ریاست میسور جس کا پرانا نام تھا آج کل اس کو کرناٹکا کہتے ہیں جی. کرناٹکا. غلطی دونوں سے جی. ریاست جموں اور کشمیر اقوام متحدہ کے کتنے ممبر ملکوں سے رقبے کے لحاظ سے بڑی ریاست ہے؟ 91، 92، 93؟ 92. 92 جواب درست ہے جی. آپ کی باری ہے جی. لاہور کی وہ کون سی مسجد ہے جس کی تعمیر میں رستم زماں گاما پہلوان اور علامہ اقبال نے حصہ لیا؟ مسجد وزیر خان. چیلنج. سوری سر. مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. یہ مسجد شب بھر اس کا نام ہے جی. عرب لیگ پہلے قائم ہوئی یا اقوام متحدہ؟ اقوام متحدہ. چیلنج. عرب لیگ. عرب لیگ جواب درست ہے جی. صوبہ خیبر پختونخوا کے مشہور لوک گیت کون کون سے ہیں؟ نہیں پتا جی. چیلنج. سوری سر. ٹپا، ٹنگ ٹکور، لوبا، نمکئی، ساندرے وغیرہ وغیرہ. غلطی ہو گئی جی. ٹینک تو فوجی گاڑی کو کہتے ہیں. ٹینک یہ جو ہوتا ہے، سمجھ آ رہی نا میری بات جی؟ یہ بتائیں ٹینکر کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کوئی مایا چیز بھری جاتی ہے، مطلب پٹرول جس میں بھرا جاتا ہے، آئل ٹینکر. مایا چیز، پانی وغیرہ، لیکوڈ کوئی چیز بھری جاتی ہے اس کو ٹینکر کہتے ہیں. وہ بحری جہاز جس میں پیٹرولیم یا معدنی تیل بھر کر ایک ملک سے دوسرے ملک کو بھیجا جاتا ہے اسے ٹینکر کہتے ہیں. جواب درست مان لیں جی. ٹھیک کے قریب جو صورتحال ہے بتا دیں گے جی. ویگورین کے فائنل میں آج کا جو فریج ہے وہ جیتا ہے وسیم حیدر نے. آپ رنرز اپ رہی ہیں. ویگورین کا یہ تحفے آپ کے سامنے موجود ہیں اور اس لفافے میں آپ کے لیے 3000 روپیہ ہے جی. یہ تحفہ تو آپ کے سامنے ہی ہے اور فریج اس کا بڑا تحفہ تھا. یہ پروگرام ختم ہو تو آپ کی امانت ہے، لے کے جائیے گا جی. بہت شکریہ.
ख़वातीन व हज़रात, सवाल व जवाब का सिलसिला वक्ती तौर पर मौकूफ़ करते हैं और आपके लिए कुछ मूसीकी का एहतमाम किया गया है। इस्तकबाल कीजिए, गुलकारा हैं रागनी। तड़पा तेरा मुख वेखण नु दिल करे तैनू वेखी जावां। तड़पा तेरा मुख वेखण नु दिल करे तैनू वेखी जावां। जिदरी तेरे नावे नावा माया वे माया वे माया वे माया होई ना जुदा मेरा रो सदा ए हो रो दिल मंगदा सुपने तेरे मेरे नैना विच मैंने बसा। आजा माहिया आजा आजा सोनिया आजा आजा मेरा मां आजा आजा गाजना आजा आजा माहिया आजा आजा सोनिया आजा आजा मेरा मां आजा आजा गाजना आजा। इश्क का सुरूर है इन फज़ाओं में, संग तेरे उड़ चलो इन हवाओं में। लम्हा मेरी जिंदगी का थम जाए यूं, फिर मिले सुकून मुझे तेरी पनाहों में। भूमि ना जुड़ा मेरा रो सदा ए हो रो दिल मंगदा सुपने तेरे मेरे नैना विच मैंने बसा। आजा माहिया आजा आजा सोनिया आजा आजा मेरा मां आजा आजा गाजना आजा आजा माहिया आजा आजा सोनिया आजा आजा मेरा मां आजा आजा गाजना आजा। तू नहीं तो कुछ नहीं है ये जहां, तेरे बिन बता मुझे मैं जाऊं कहां। आ तुझे रूह में मैं उतारी, तू ही जिंदगी है तू ही मेरी जान। भूमि ना जुड़ा मेरा रो सदा ए हो रो दिल मंगदा सुपने तेरे मेरे नैना विच मैंने बसा। आजा माहिया आजा आजा सोनिया आजा आजा मेरा मां आजा आजा गाजना आजा आजा माहिया आजा आजा सोनिया आजा आजा मेरा मां आजा आजा गाजना आजा। Attention all Jazz Bharat users, अब हफ्ता बना सुपर से भी ऊपर विद सुपर डुपर वीकली ऑफर, जिसमें मिले 1000 Jazz Bharat मिनट्स और SMS, 25 ऑल नेटवर्क मिनट्स और 1000 MB 4G इंटरनेट इन ओनली ₹150। बस डाल *770# और पूरा हफ्ता माही यार दी घड़ोली भर दी, सोनी यार दी घड़ोली भर दी। माही यार दी घड़ोली भर दी, सोनी यार दी घड़ोली भर दी। एक अल्लाह को में डर दी, एक मौला को
1940। 23 मार्च 1960। आकाश बेल की जड़ें जमीन में कितने फीट गहरी होती हैं? 10 फीट। आपने फरमाया 10 फीट। चैलेंज। आकाश बेल की जड़ें जमीन में कितने फुट गहरी होती हैं? बिल्कुल कम होती है, जड़ें ना होने के बराबर। इसकी जड़ें जमीन में नहीं होती, बल्कि ये दरख्तों पर ही परवान चढ़ती है, और जिस दरख्त पर ये आकाश बेल पड़ जाए उसको खा जाती है, खराब कर देती है, और इसके सफेद फूल निकलते हैं। सफेद फूल। जवाब दुरुस्त है जी इनका। खुशहाल खान खटक के अहद में एक सूफी शायर हुए हैं, उनका नाम बता दें। जी सर, रहमान बाबा। रहमान बाबा। जवाब दुरुस्त है जी। बताइए, जिन जानवरों की टांगें लंबी होती हैं उनकी गर्दनें क्यों लंबी होती हैं? ताकि बैलेंस रह सके, ताकि वो आसानी से अपनी खुराक हासिल कर सके। हाँ, ये है बात असल। उनकी टांगें लंबी होती हैं और गर्दनें इसलिए लंबी होती हैं ताकि वो अपने घुटनों के बल झुकने की बजाय खुराक हासिल कर सकें, इसलिए गर्दन भी लंबी होती है, टांगें भी लंबी होती हैं। जवाब दुरुस्त है जी। रियासत जम्मू और कश्मीर के शिमाली इलाका जात में कुल कितने दरिया बहते हैं? 10, 12, 14। 14। चैलेंज। 10। दोनों गलत हैं। 12। न्यूयॉर्क में वाक़े अक़वाम मुत्तहदा के सदर दफ्तर की इमारत कुल कितने मंजिला है? 10 मंजिला सर। चैलेंज। जी 140 का अंदाजा है। नहीं जी, 38। बस जी, सवाल खत्म हुए, और जो सूरत हाल है बता दीजिए। जी अल-समीना के पहले प्रोग्राम में डॉक्टर जावेद आप 4 सवालों के जवाब देते हुए पहले नंबर पर हैं, और राना मोहम्मद फहद आपने किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और आप आगे नहीं जा सकेंगे। ये आपके सामने ये शरबत की बोतलें और कैश आपको मुबारक हो। आपको ये शरबत की बोतलें मुबारक हो जी, क्योंकि आपने किसी का जवाब नहीं दिया। चलिए बिस्मिल्लाह जी। ख़वातीन के लिए शोबा है, इसमें वो किस्मत का खेल है। आपने निशाना बांध के जितने नंबर हासिल करने हैं। मुझे 4 ख़वातीन की ज़रूरत है जो इसमें हिस्सा ले सकें जी। और वाइटल ब्यूटी सोप, किस्मत का ये खेल वाइटल ब्यूटी सोप की तरफ से है। वाइटल ब्यूटी सोप अपना पैगाम देते हैं कि ये पाकिस्तान का पहला हलाल सोप है, वाइटल ब्यूटी सोप। आइए जी, पहले मेहमान इसमें से 2 तीर उठा लें। और यहाँ आ जाएं, यहाँ जी। सुन लें कि ये सुर्ख लकीर ख़तरे की है, इसमें अगर लगा तो वो माइनस हो जाएगा, और बाकी जहाँ कुछ नहीं है इसके 100 नंबर हैं जी। दूसरा, चलो उठा लें दोनों, जहाँ रख दें। आइए बेटा, आप जोर से मारें। यस। 31 और दूसरा का, और दूसरा तो नीचे गिरा दिया। 31 जी। आइए जी, तीसरे मेहमान। जी।
60 में से 25 मंफी कर दें, बाकी इनके नंबर हैं। आखिरी मेहमान जी, जब मैं यस कहूं। उठा लें जी दोनों। जी, वाइटल ब्यूटी सोप के किस्मत के चक्कर में सायरा और राबिया, आप लोगों ने कोई नंबर हासिल नहीं किया। इनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। और रहीमा, आपने 31 नंबर हासिल किए हैं और शुमाइला आपने 35 नंबर हासिल किए हैं। तो रहीमा और शुमाइला, आप लोगों के लिए वाइटल ब्यूटी सोप के कैश प्राइजेस हैं जो कि आपके सामने मौजूद हैं, और सायरा और राबिया, आप लोगों के लिए वाइटल ब्यूटी सोप के गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। जी, बैतबाजी का मरहला आन पहुंचा है। जी, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से राबिया लतीफ़ और अनीक नवाब, आप हमारे मेहमान हैं। लासानी तूत स्याह प्लस मलठी के कहते हैं कि टॉन्सिल्स के ऑपरेशन से पहले ज़रूर इस्तेमाल करें लासानी तूत स्याह प्लस मलठी। लासानी का असल तूत स्याह प्लस मलठी, सिर्फ तूत स्याह नहीं बल्कि लासानी तूत स्याह प्लस मलठी। और जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर सकलैन सैयद और फैसल अब्बास, आप मेहमान हैं। टोकन के बगैर पेंट्स बनाने वाले मास्टर पेंट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। मास्टर पेंट करा के कुड़िए सालों तक तुम मौज उड़ा हो। लोग दिन में नींद आवर गोलियां खाने लगे। न गरज इरम के वकार से, न सनम कदे की बहार से, हमें काम है दरे यार से, दरे यार फिर दरे यार है। ये इर्तिका का चलन है कि हर जमाने में पुराने लोग नए आदमी से डरते हैं। नून, नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। मुझे रोना नहीं, आवाज भी भारी नहीं करनी, मोहब्बत की कहानी में अदाकारी नहीं करनी। ये दूध कोज़ाए आलूदा के लिए नहीं है, मैं हर किसी से तेरी गुफ्तगू नहीं करूँगा। एक दीवार से लटकी हुई तस्वीरों को ऐसे तकता हूँ कि फिर सांस भी कम लेता हूँ। निकलोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल ना मिलेगा। अच्छा हुआ जो आप दरीचे से हट गए, किस किस की मैं हजूम में आंखें निकालता। आप अब पूछने को आए हैं, दिल मेरी जान मर गया कब का। उठाए फिरता रहा मैं बहुत मोहब्बत को, फिर एक दिन यूं ही सोचा ये क्या मुसीबत है। यानी तरतीबे सितम का भी सलीका था उसे, उसने पत्थर भी उठाया मुझे पागल करके। जी, याद के साहिल पे गम की सीपियां चुनते रहे, वो गई तो उसकी टूटी चूड़ियां चुनते रहे। यार को दीदे खुमार से ओझल करके, मुझको हालात ने मारा है मुकम्मल करके। यूं नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी उस पेड़ की छाँव में गया बैठ गया। अब दोस्त कोई लाओ मुकाबिल में हमारे, दुश्मन तो कोई कद के बराबर नहीं निकला। अच्छा है गुफ्तगू का सलीका नहीं तुझे, होंठों पे तू गुलाब सजाता तो मैं न था। अब खेत में गंदम की जगह भूख उगेगी, इस दौर के इंसान से ज़मीं रूठ गई है। ये बहुत खुद को लिबादों में छुपाने वाले बात करते हैं तो औकात निकल आती है। ये और बात कि मुझको शहरों की आरज़ू थी, मैं खुद पे कर रहा हूँ वीरानियाँ मुसल्लत। तोते हमने वो भी मारे जिनमें देव की जान न थी, देख तेरी खातिर शहजादी हमने क्या क्या जुल्म किए। ये तुमने क्या गज़ब ढाया जो मैयत पर चले आए, किसी ने कह दिया बेसाख्ता कातिल तो क्या होगा। आंगनों में दफन होकर रह गई सब ख्वाहिशें, हाथ पीले होते होते रंग पीले हो गए। ये किस पे तावीज़ कर रहे हो,
یہ کس کو پانے کے ہیں وظیفے، تمام چھوڑو بس ایک کر لو، جو استخارہ تو میں تمہارا۔ اتنا بکھراؤ سمٹنے میں کہاں آتا ہے، گھر کی ہر چیز کو عادت ہے تیرے ہاتھوں کی۔ یوں نہ مل مجھ سے خفا ہو جیسے، ساتھ چل موجے صبا ہو جیسے۔ یہاں تو شہد کی مکھی بھی خوش نہیں رہتی، یہ شہر چادریں پھولوں پہ تان دیتا ہے۔ یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ، یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی۔ یہ اثر بھی عشق احمد سے زباں میں آ گیا، تیر کو آواز دی واپس کماں میں آ گیا۔ اس فن کے پہلوانوں سے کشتی رہی ہے میر، بہتوں کو ہم نے زیر کیا ہے پچھاڑ کر۔ رد دعا کا نصف اثاثہ تمہارے نام، تم نے بھی میرے ساتھ ہتھیلی اٹھائی تھی۔ یہ توہم کا کارخانہ ہے، یا وہی ہے جو اعتبار کیا۔ آپ کو کون تماشائی سمجھتا ہے یہاں، آپ تو آگ لگاتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ نون نہیں مصروف میں اتنا کہ گھر کا راستہ بھولوں، کوئی جب منتظر نہ ہو تو گھر اچھے نہیں لگتے۔ یہی تو ہوتا ہے عجلت میں گھر بنانے سے، کہیں کی اینٹ کہیں پر لگانا پڑتی ہے۔ یوں تیری تصویر غزل میں آئے، جیسے بلقیس سلیمان کے محل میں آئے۔ یادوں کے دریچوں کو ذرا کھول کے دیکھو، ہم لوگ وہی ہیں کہ نہیں بول کے دیکھو۔ وہ شخص جس نے مجھے ورد اس میں یار دیا، سفر میں ساتھ رکھا واپسی پہ مار دیا۔ اسی لیے تو میرا گاؤں دوڑ میں ہارا، جو بھاگ سکتے تھے بے ساکھیاں بنا رہے تھے۔ بس شعر دونوں طرف سے کچھ اچھے بھی آئے، کچھ واجبی سے اور کچھ سطحی سے۔ بہرحال یہ ٹیم جو ہے ماسٹر پینٹس کی مہمان، اس نے ایک دو شعر بڑے اچھے پڑھے، لیکن ایک دو میں ان کی تلفظ کی بھی غلطیاں سامنے آئیں، اور یہ ٹیم ہے کہ ان کے تلفظ کی کوئی غلطی سامنے نہیں آئی اور شعر بھی انہوں نے اچھے پڑھے، تو میرے لحاظ میں آج یہ ٹیم جیتتی ہے۔ لاسانی توت سیاہ پلس ملٹھی ٹونسلز کے آپریشن سے پہلے ضرور استعمال کریں۔ آپ کے سامنے ان کے تحفے ہیں اور یہ چھوٹے لفافے، ان میں کیش ہے جی۔ بھائی آپ کے سامنے ماسٹر پینٹس کے تحفے ہیں، اور یہ ماسٹر پینٹس کے تحفے اور کیش آپ کے لیے بھی یکساں ہے جی۔ بسم اللہ۔